سوالات کو دیکھیں سر، صورتحال ایسی ہے مولانا صاحب کے، ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مولانا صاحب سسٹم سے باہر ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف آپ کسی نہ کسی طریقے سے سسٹم کا حصہ بھی ہیں، یعنی گورنر صاحب موجود ہیں اور آپ پھر اسمبلیوں میں بھی جائیں گے، تو جب آپ اسمبلی میں جائیں گے تو پھر آپ کا وہ جو باہر ایک احتجاج ہے اس کی پھر کیا وقت رہ جائے گی؟ اور 2018 میں بھی ایسے ہی تھے، ہم اسمبلی میں بھی تھے اور ہم نے کہا کہ غلط، تو سیدھی بھی اسمبلی میں تھی اور کہتی تھی کہ غلط ہے، پیپل پارٹی بھی اسمبلی میں تھی اور کہتے تھے دھیان نہیں، خان بھی اسمبلی میں تھی صوبائی میں غلط ہے، تو تمام پارٹیاں کا ایک موقف تھا۔ آج کیوں موقف تبدیل ہو گیا ہے؟ یہ جو ہمارا سوال تقریباً یہی میں سب کو ملا ہے، تو اس وقت دھیان دیجیے اور آج کے مزاج صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سیاستدان ہے اس پر تشکیل آج کل زیادہ ہو رہا ہے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بس مجھے کچھ دے دے گا، تو کیا آئندہ کے لیے JUI یا دیگر پارٹیاں اس کی طرف نہیں دے گی؟ بالکل آپ کی بات جب نہیں ملے تو احتجاج کرتے ہیں۔ جی جی بالکل صحیح ہے آپ کی بات۔ ثاقبہ کیمرہ پس چل رہا کر پردے ہوتا، اسی سے ہم نکلنا چاہتے ہیں، اور میں سب دوستوں سے یہی کہوں گا آرام سے بس یہ جو اتھارٹی کا معاملہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ اسمبلیاں میں بھی ان کی مرضی کے مطابق ہوں گی، بندے بھی ان کی مرضی کے مطابق ہوں گے، یہاں تک کہ سیاسی پارٹیوں کو کہا جاتا ہے کہ اب یہ امیدوار ہے دوسرا امیدوار کرا ہے، اس کی جگہ فلانا کھڑا کرو۔ یہ جو مداخلت ہے ملک کے سسٹم میں، پارلیمنٹ میں اتھارٹی ہے جو عوام کی نمائندہ ہے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ نہیں ہونا چاہیے، عوام کی نمائندہ ہونا چاہیے۔ آج اس وجہ سے ایک بار پھر نہیں، اس قسم کا تجربہ آپ کی بات کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ اس امیدوار کو کھڑا کر دے اور اس ہونا چاہیے؟ یہ نہ پوچھو۔ مولانا صاحب بائیں بازو کی طرف ہی دیکھیں، آپ کا سارا لوگ دائیں بازو کی طرف ہے۔ مولانا صاحب اس میں دو قسم کی رائے ہے، ایک رائے تو یہ ہے کہ شاید آپ اس مرتبہ حالانکہ آپ ایک بڑے سلجھے ہوئے منجے ہوئے سیاستدان کے طور پر آپ کی نہیں، میں یہ عرض کروں کہ اس دفعہ یہ ایک تاثر ہے کہ شاید آپ اپنے کارڈ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے نہیں کھیل سکیں، تو آپ مرکز میں بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے سیکٹر میں بلوچستان جہاں ڈیفینیٹلی آپ کو ہونا چاہیے تھا، آپ کی پارٹی کی حکومت بننی چاہیے تھی، آپ وہاں بھی سسٹم سے باہر ہو گئے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جن کے ساتھ آپ کی دشمنی تھی ان کے ساتھ آپ کی یاری ہے اور باقی پورے پاکستان کو بشمول اسٹیبلشمنٹ آپ دشمن بنا کے بیٹھ گئے ہیں، تو یہ کیسی بات ہے؟ کوئی سوال نہیں میرا ملک کے اندر ہے، اور میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ بتاؤں گا کہ جو سسٹم کے اندر ہے وہ روئیں گے اور جو سسٹم سے باہر ہیں وہ جم کر بات کریں گے اور جرأت سے بات کریں گے۔ وہ سب اپنے تو بڑے بڑے جلسے کیے رہتے ہیں الیکشن سے پہلے، بڑے بڑے جلسے تھے آپ جس سے ہم نے خود کام کیے ہوتے ہیں، سارے سینئرز بیٹھے ہوئے لوگ تھے، اور آپ نے اس سے کچھ دن پہلے کہا بھی تھا کہ والا نہیں ہے، یہ کولیپس کر جائے گا۔ اب جو نظام ہے ملک کے اندر کا یہ تو تمام ہو جائے، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ ملک کولیپس کر جائے۔ ہم نے تو ہمیشہ اس ملک کی بقا و سلامتی اور اس کے استحکام کی جنگ لڑی ہے، اور اس کا صلہ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ ہمیں لیا ہے، اس تمام تر دھاندلی کی ذمہ دار بڑی حکومت ہے۔ اگر PTI جیتی ہے تو حکومت ہے ان کو، اور اگر واقعی وہ سمجھتے کہ ہمیں دھاندلی نہیں کی، 9 مئی کا جو بیانیہ ہے وہ جو ہے صبح کو دینا بتا رہے ہیں۔ مولانا صاحب انتخابات 2024 میں دوبارہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ 5 سال بعد ہی ہوں گے؟ اگر تو ان کی میں ہوں تو مولانا صاحب آپ کی جماعت کا جو اجلاس ہوا ہے KP کا اور سابقہ پارٹی کا، اس میں فیصلے کیا ہوئے ہیں اور کسی میدان وغیرہ کا انتخاب کیا ہے کہ کہاں سے؟
देखिए उसमें एक तो हमने मरकज़ी इंतजाम के फैसले पर अपनी सूबाई जमातों को एतमाद दे रहना था और उनको ज़रा उन असबाब वजूहात से आगाह करना था कि जिस पर हमने इस फैसले से आगे बढ़े। और दूसरा ये कि हमें इख्तियार नहीं था दस्तूरी लिहाज से अपनी पार्टी की दस्तूर के हवाले से कि हम ये फैसला कर सकें कि हम पार्लिमानी सियासत करेंगे या ना। अगर पार्लिमान ये हो तो फिर इस पार्लिमान की सियासत करना कब है। तो इस हवाले से जब कौन सा हिफाजत किया तो चारों सूबों का जरा उनको एतमाद मिलने के बाद फिर जो जनरल कौंसिल मरकज़ी है हमारे उसका इजलास होगा और उसमें इस मुद्दे पर बात होगी। फिर जनरल कौंसिल सबसे बड़ा इख्तियार है जो फैसला कल हलफदारी की तकरीब हो रही है और यहाँ पर जो लोग जेवाई वो क्या हलफ लेंगे या हाँ वो तो हमने कहा कि जब तक हम पार्लिमानी निज़ाम से लाताल्लुक़ का ऐलान नहीं करते तब तक हमारा पार्लिमान चलता जाएगा। मौलाना साहब अभी सदारती इलेक्शन भी आ रहे हैं जिसमें आसिफ अली जरदारी भी उम्मीदवार है, तो क्या उनकी हिमायत हो सकती है या दूसरी पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत करें? उसूली फैसला हमारा यही है कि हम इसमें किसी किस्म के वोट में हिस्सा नहीं। मौलाना साहब ये बताएं कि आप कहते हैं कि सिस्टम चलने वाला नहीं है, ये लोग नहीं चला सकते, तो फिर हल क्या है आपके ख्याल में? गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने सोच के उलझाई है। कौन सुलझाएगा? ना बनने को फैसला किया है। मौलाना साहब एक खत लिखा गया है IMF को पीटीआई की जानिब से, उस पर तनकीद की जा रही है, आप उसको किस नज़र से? देखिए मैं नजरियाती आदमी हूँ, मैं IMF को इतना इन्वॉल्व करना, वैसे भी उनके रवैये हमारे साथ अच्छे नहीं हैं, कुछ इक़्तिसादी तौर पर हम इतने कमज़ोर हुए हैं माजी में कि वहाँ पर भी हमारी बहुत सी मुश्किलात होती हैं, जो उस शराइत पर हमसे बात करते हैं। तो इस हवाले से हर ये मसला है और जिस पर हमने कहा था कि वो इसलिए गलत है, वहाँ पर तो IMF जो है उसके हाथ सब कुछ बेचा गया, स्टेट बैंक उनके हवाले किया गया, साथ उनके हवाले किया गया। लेकिन हमें किसी बाहर के इदारों को इस हद तक मुदाखलत की दावत नहीं देनी चाहिए। मौलाना साहब अगर एहतजाज की तरफ से हो तो फिर PTI के साथ एहतजाज कर सकते हैं आप? एक बात ध्यान में रखें कि आप लोग खास तौर पर जो हमारी सहाफती दुनिया है, अगर कहीं पर कोई आदमी एक पहला कदम उठाता है तो आप फौरन उसको मंजिल पे पहुँचा दें। हालांकि मंजिल में अभी कोस सफ़र होता है, वो ज़रूर तशरीफ लाए हैं, इसका मकसद किया मेहमान की इज्जत हमारा कल्चर है, हमारे तहजीब तमद्दुन का हिस्सा है। लेकिन ज़ाहिर है कि इख्तिलाफात भी हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं उनके हवाले से, उनके नज़रियात, उनके एजेंडे के हवाले से, और उनके और हमारे दरमियान कोई एक दीवार हायल नहीं है, कोई पहाड़ हायल नहीं। उनको हम कैसे सर करेंगे, किस तरीके से हम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। लेकिन एक सियासी जमात और एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर कोई फरीक मामलात को तय करने पर आमादा है और संजीदा है इसमें कि हम जमीयत के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहते हैं, तो सियासी आदमी मुज़ाकरात भी करता है, वो मसले के हल का इनकार भी नहीं करता, वो एक मंजिल तक पहुँचना भी चाहता है। हम कोई बंदूक की सियासत नहीं कर रहे, तो दलील की सियासत करते हैं, और अगर मुतमईन कर सकता है तो हम उसकी रुकावट भी नहीं है। लेकिन इसमें मरहला बहुत बाकी है, कोई तो ये शायद हम न कह सकें कि हमारे मामला तय हो गए हैं। हाँ, कुछ उसको हम एक अच्छी शुरुआत कह सकें। मौलाना साहब ये फरमाइए कि एक तो आप मेरे से फरमाया कि इजलास था और एक इसमें जो पार्लिमानी सियासत है उस पर नज़रसानी की एक नुक्तों में नुक्ता शामिल था। ये आज का जो इजलास था इसमें अमूमी राय, अमूमी तासुब क्या पाया गया? दूसरी बात यह कि जैसे सिंध में अगट्ठे एहतजाज किया जा रहा है आदमी के खिलाफ GDA के प्लेटफार्म से, जो यहाँ भी कल भी ANP का जो है एहतजाज है, इस हवाले से जो मुतासरीन है या मुतासरा जमातें हैं या जो धांधली के इल्ज़ाम लगा रही हैं,
आपस में कोई हुआ है, राब्ता हुआ है और कोई इकट्ठा एहतजाज का प्रोग्राम लिया है? इस वक्त तो हो गया होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप थोड़ी सी हमारी जमात की जो स्ट्रक्चर है उस पर काम करें। इस वक्त तक तो सूबे अपने अपने तौर पे एहतजाज का तरीक़ाकार तय कर रहे हैं, तो सिंध में एक अंदाज से होगा, बलूचिस्तान में और अंदाज से। यहाँ मरकज़ का इजलास जब होगा और उसमें जो तय होगा उसके मुताबिक तो पूरे यकसा हमारा एक्शन होगा और उसके हमारे इक़दाम। जो मौलाना साहब ये मरकज़ में हुकूमत साजी के हवाले से या बलूचिस्तान में हुकूमत में शमूलियत जिलवाई के हवाले से कुछ राबिते हुए आपके जमात के साथ? सियासी लोग राब्ते तो करते हैं, राब्ते तो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सियासत में नहीं हुआ करते, लेकिन हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ है कि हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते। हमें सिस्टम से बाहर नहीं किया गया है, बल्कि हमने सिस्टम से बाहर रहने का फैसला किया। मौलाना साहब असेसमेंट तो क्या होगा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में और कौमी असम्बली में कितने मेंबरान हैं जो आपके बनते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, यानी आप जीत चुके हैं, आपसे लिए गए हैं, आपने अपने असेसमेंट के मुताबिक कितने होंगे? मैंने तो अभी इस सवाल का जवाब नहीं सोचा और मैं आपको भी हिसाब किताब करूँगा आपको कहना। अच्छा मौलाना साहब, दानली का तरीक़ाकार क्या था? और दूसरा है कि 8 फरवरी के नताइज के बाद आप नहीं समझते कि साइफर और 9 मई का जो बयानिया था वो ख़त्म हो चुका है, तो इमरान खान को भी अब रिहा होना चाहिए? मैंने तो गिरफ्तारी के वक्त ही कह दिया था, आज तो नहीं कहा था, गिरफ्तारी के वक्त भी कहा था कि सियासत का मज़ा नहीं आ रहा, मेरा मुखालिफ जो है वो बंधा हुआ है और मैं आज़ाद कर रहा हूँ, तो मुकाबले का मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं तो किसी सियासतदान की जेल में, लेकिन अब आगे कानून का मामला है, अदालतों का मसला है, मामला तो ज़ाहिर है कि उन्हें खुद अपने तौर पर करने होते हैं। जहाँ मेरे सियासी सोच के हवाले से बात है, ख़त्म रजिस्ट्री के केस की नौीयत क्या है, मैं किसी सियासतदान की कैद में रहने का, हम खुद कैद गुजार चुके हैं, कई साल तक हम जेलों में रहे हैं, जेल में आके जाते रहे हैं, तो ये सियासी लोग जेल में जाते हैं, वो ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये नौीयत क्या है केसेस की, क्यों जेल में है, ये अपनी जगह पर है, लेकिन ज़ाती तौर पर मैं किसी सियासतदान के जेल में जाने पर मैं खुश होता हूँ। मैं समझता हूँ खिलाफ हो वो भी आप खुले हाथ करें, हम खुले हाथ करें। और दानली का तरीक़ाकार क्या था? जो दानली का तरीक़ाकार एडमिनिस्ट्रेशन का अपना था। मौलाना साहब पहले मौलाना साहब सबसे पहले आप जलसे में एक बात किया करते थे कि कुछ लोग आपके पास बैग लेके आए, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी, फिर आपको तनहा कर दिया 18 के इंतखाबात में। अब 24 में आपको फिर से तनहा कर दिया, बाद कॉन्फ्रेंस जमात साइड पे कर दी गई। प्लेन वही वाला अभी भी चल रहा है कि नहीं? सर इसमें मैं एक सवाल है, वेब वाला प्लेन चल रहा है कि नहीं? एक उसमें तरफ कुछ चेंज हुआ बाजावड़ है? में आपको सिक्योरिटी थ्रेट से ठीक है, आपकी जमात को थ्रेट से हमले भी हुए थे, वो तो फिर दैश ने मान लिया था कि हम कर रहे हैं। फिर ये खान में आप पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग होती रही, आप लोग कर सकते हैं, क्या इससे हम ये तासुर ले सकते हैं कि जानबूझ के ये लोग ये करते रहे, आप हुकूमत में ना सके? आज तो तमाशा ये है कि इलेक्शन गुजर गया, उसके बाद कोई थ्रेट नहीं। आप क्या समझते हैं सर? बता दीजिए। तो ये सारा आपको तो ज़्यादा लगाएं कि किस तरीके को अपनाया गया, कहाँ पर कैसे तरीके अपनाए गए, कि हमें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, जिसको कामयाब कराना है उनके साथ गाड़ियाँ रखकर वो इलाकों में जाते हैं कि यहाँ भी सोच ही नहीं सकता, तो उनको पब्लिक से मिलने के मौके मुहैया किए जा रहे हैं, उनको सहूलतें मुहैया की जा रही हैं। हमें कहा जा रहा है कि आप रिपब्लिक में नहीं जाना, आपके लिए खतरा है, गए तो तरफ के जिम्मेदार नहीं होंगे। तो इस किस्म की चीज़ें जो है सारे वही हरबे होते हैं कि आपको किस तरीके से नाकाम बनाया जाता है और किस तरीके से आपके खिलाफ अथॉरिटीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। राज साहब ये एक सवाल का जवाब दें कि जैसा कि आपने फरमाया कि हम हर किस्म के इंतखाबात के साथ ताल्लुक रहेंगे जो पार्लियामेंट के हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कल असम्बली का इजलास है, तो जो अपोजिशन की साइड की जमातें हैं उनसे भी आपका ताल्लुक रहेंगे, अपोजिशन लीडर के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, वो जरा नहीं रहेंगे, इस किस्म मैं एक बात और भी आपसे करना चाहता हूँ, मैंने अभी दोस्तों से भी कहा तो मसला क्या है, हम किसके लिए प्रॉब्लम है, ये तो हम तस्लीम नहीं करते कि हमने पब्लिक में मुस्तरद किया है,
हमें अपने हुजूम का भी पता है। मैं कुछ ये नहीं कह रहा कि मैं 100-200 सीट की पोजीशन में हूँ, लेकिन अपनी जो हक है मेरा उसका अंदाज़ा मुझे है कि किस फैक्टर में कामयाबी हासिल होनी चाहिए। तकलीफ किसको? अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, इस्लामाइजेशन की बात करते हैं, इस्लामी कानून साजी की बात करते हैं, तो ये किसके लिए प्रॉब्लम? अगर हमारी बड़ी ताकत इस समझ में जाती है तो फिर हमारी ये नज़रिया किसके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है? मेरे ख्याल में इस मसले को हमें जांचने के लिए पाकिस्तान की तारीख को भी सामने रखना होगा कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट, हमारे हुक्मरान अव्वल से लेकर आखिर तक इस मुल्क में किसी तरह की इस्लामी कानून साजी के हवाले से तैयार नहीं हुए, और आज भी उनको यही खतरा है कि ये आवाज़ जो है यहाँ दबा दी जाए किसी तरीके से, ताकि रोज़ रोज़ असम्बलियों के अंदर जो है अपनी अददी क़ुव्वत की बुनियाद पर अपने नज़रिए की बात करें। दूसरी बात यह है कि आप भी ये जानते हैं कि 9/11 के बाद पाकिस्तान में जो तहरीक हमने चलाई उसने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बरसगीर और जनूबी एशिया में एंटी अमेरिकनिज्म पैदा किया, और कोई एतराफ़ किया, आपके सामने भी एतराफ़ किया, मीडिया ने एतराफ़ किया। तो उस हवाले से भी अगर आलमी क़ुव्वतों के मुकाबले में हम कोई आवाज़ बुलंद करते हैं तो उनकी भी हिदायत ये होती है कि इनके हुजूम को कम किया जाए। और फिर ऐसे वक्त में जबकि इमारत इस्लामिया का इस्तेहकाम अमरीका और मगरबी दुनिया को कबूल नहीं है और पाकिस्तान अफगानिस्तान को लड़ाने के लिए मनसूबाबंदी भी की जा रही है, और इस बीच में हम आते हैं और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर बनाने में किरदार अदा करते हैं, तो ज़ाहिर है कि उसका नतीजा अफगानिस्तान के इस्तेहकाम भी होगा, पाकिस्तान का इस्तेहकाम भी होगा। ये भी उनकी नज़र में खटक रहा है कि ये पार्टी है कि इसको इतना बड़ा किरदार न दिया जाए कि वो अफगानिस्तान के अंदर हमारे इस्लामिया के इस्तेहकाम का जरिया बने। ऐसे मौके पर जबकि सारे अमेरिका और मगरबी दुनिया इसराइल की पुष्ट पर खड़ी है और फिलिस्तीन और इसराइल की लड़ाई हुई और हम खुलकर मैदान में आए, हमने जलसे किए, कोयटा में हुआ, कराची में हुआ, फिर हम कतर गए, हम क़यादत से मिले, तो ये भी बैनुल-अक़वामी दुनिया को बड़ा खटका है। वही एक कुव्वत ऐसी है कि जो खुलकर इसराइल की मुखालफत में और फिलिस्तीनियों के हम ऐसे लोगों को इसमें से बाहर रखा जाए। ये अवामिल हैं कि जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि हमारी वजूद से किस किस पर मनफी असर पड़ सकता है, तो वो सारे लोग जिन पर हमारी ताकत का मनफी असर पड़ता होगा वो इकट्ठे हो गए हैं हमारे खिलाफ, और उन्होंने हमारे हुजूम को कम करने के लिए। और आप हज़रात की इत्तला के लिए इलेक्शन से पहले मुझे इत्तला हो गई थी, इलेक्शन से पहले, कि आपके लिए फैसला हो चुका है कि जमीयत के हुजूम को और से छेड़ा जाए। ये इलेक्शन से पहले कैसे फैसला होता है, और वही हुआ। आपको तो नजर आ रहा है। मौलाना साहब ये बताएं कि जो अफगानिस्तान का आपने दौरा किया, क्या वही वजह बनी कि जिसमें आपको फिर इलेक्शन में हराया गया, आपकी सीट्स छीनी गई? ये जो इजलास में है, या आपकी तरफ से कोई अहकामात हैं हाजी गुलाम अली साहब के लिए, क्या कि उन्होंने क्या करना है आगे कुछ आइंदा कुछ दिनों में? देखिए, ये कोई मसला है ही नहीं, आईनी मनसब है और हम स्मूथली आगे जाएंगे। अगर ये फैसला हुआ कि भाई उनको तो हम अपनी कोई पार्टी को बदला रहना चाहते हैं, इसकी साथ नहीं है हमारा, लेकिन जमात ने इस हवाले से कोई ऐसी राय कायम नहीं की, ना हम इसको कोई सियासी मनसब समझते हैं कि एहतजाज मुसाफिर हो जाए। एक रियासती मनसब है, आईनी मनसब है, और हम स्मूथली समझते हैं कि इस पर हम कोई सियासत न कर पाए। तो मौलाना साहब आपने जो बातें की है, तो इनके जो मतलब बैरूनी अवामिल है इसमें, तो फिर तो PTI और आपका जो नारा है गुलामी ना मंजूर वाला, ये मतलब मुश्तरका एक नारा है, तो इन नुकात पे कोई इत्तेहाद हो सकता है? ये सवाल ऐसा है कि इस दावे को पहले हम तस्लीम करते हैं या नहीं करते, पहले जवाब दिए है।